Vande Vani Vinayakam. Jai Gurudev and a warm welcome to one and all to this Facebook live talk session on the theme Sanskrit and the Modern World. In this fast changing world, our education system needs to prepare our students for future requirements of our society. For this, educationalists and scholars all over the world in every stream of knowledge today are continuously indulged in the process of preparing educational programs which are future ready. Since the beginning of human civilization, Sanskrit has been a lab for various sources of education worldwide. Throughout the journey of time, Sanskrit education system has updated itself with interdisciplinary studies and modern ways of teaching, still retaining its own pious identity of Gurukul era. Accepting the challenge of this modern world, Sanskrit scholars today are taking this educational realm of Sanskrit to the future world in various ways. This talk explores on this journey of transformation of Sanskrit education for creation of better future of humanity and the world. In this brainstorming session, we will discuss future responsible possibilities in Sanskrit education, its interconnection with modern sciences and arts, and what the world expects from future Sanskrit scholars. To fulfill the purpose of the talk, the panel of speakers include a combination of some of the greatest Sanskrit scholars of present world and some innovative young scholars in Sanskrit who are shaping future Sanskrit education system in their own creative ways. On our forum today, we are blessed to have Dr. Radha Vallabh Tripathi ji, visiting professor, Bhandarkar Oriental Research Institute, Pune, and former Vice Chancellor, Rashtriya Sanskrit Sansthan, Delhi, and one of the greatest Sanskrit academicians in the world today. He will talk today on the relevance of Sanskrit theatre today. Welcome, sir. We have with us Dr. Amba Kulkarni ji, Professor and Head, Department of Sanskrit Studies, University of Hyderabad, and a pioneer in the field of computational Sanskrit. Her topic for today's forum is Sanskrit and Natural Language Processing. Welcome, ma'am. We have Dr. Sampadanand Mishra ji, Director, Sri Aurobindo Foundation for Indian Culture, Pondicherry, a great academician and innovator. He will discuss today on his innovative world's first Sanskrit radio, Divya Vani. Welcome, sir. On our forum, we have Dr. Madan Mohan Jha, Head, Education Department, Central Sanskrit University, Sri Ranveer Campus, Jammu, and a big name in the world of online Sanskrit education. And on this topic, we will know more from him today. Aapka swagat hai, sir. Today, we also have with us Dr. Sanjay Dwivedi, a young innovative musician and the founder of world's first music band, Dhruva. We will learn about his journey of music and Dhruva today in this forum. बहुत स्वागत संजय जी. धन्यवाद. And we have with us Dr. Anurag Mishra, Sanskrit language teacher, Directorate of Education, GNCT Delhi, and one of the very few Sanskrit career counselors available to us today. He will guide our viewers on the Sanskrit careers in the future world. Swagatam Mahashay. I welcome wholeheartedly to all revered speakers on the forum today, Sanskrit and the modern world. Namo Namah, Swagatam Bhavatam. आपके लिए चूंकि समय की प्रतिबद्धता है, तो एक प्रमुख प्रश्न मेरा है जिसमें हमारे सभी छात्र बड़े उत्सुक हैं आपसे जानने के लिए, संस्कृत छात्रों के लिए भविष्य के क्या रोजगार होंगे? सभी को प्रणाम करता हूँ. ये कार्यक्रम थोड़ा विलंब हो गया है और मैं चाहता था कि थोड़ा 7 मिनट मिलता इस पर, क्योंकि यह जो क्षेत्र है रोजगार का, ये सबसे उपयोगी क्षेत्र है. हम चाहे जितनी पढ़ाई करें, चाहे जितनी डिग्री ले लें, लेकिन अगर हमें रोजगार नहीं मिलता है तो फिर उनका ज्यादा प्रयोजन नहीं बचता है. समाज में एक परसेप्शन है कि संस्कृत विषय के अध्ययन के साथ रोजगार के अवसर या तो सीमित हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं. और यह परसेप्शन केवल अनपढ़ लोगों में नहीं है. मैं पढ़े लिखे लोगों से बात करता हूँ, वो भी ये कहते हैं कि संस्कृत और संस्कृत के साथ फ्यूचर क्या हो सकता है.
तो विद्यार्थी जीवन से ही, क्योंकि मैं बाई चॉइस संस्कृत का शिक्षक बना हूँ, तो मुझे इस बात की आवश्यकता थी कि मैं इन लोगों के सामने ये प्रूव करूं कि संस्कृत ही एक ऐसा विषय है जिसमें किसी भी विषय से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। तो मैंने संगठित रूप से इस काम को करना शुरू किया कि मैं 1, 2, 4 विद्यार्थियों से बात न करके एक संस्था के माध्यम से मैं विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के पास जाकर बात करूं, महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के पास जाकर बात करूं, गुरुकुलों में जाकर बात करूं और उनको बताऊं कि आप जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप जो संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं, ये वो विषय है जिसमें आप सबसे अधिक रोजगार की संभावनाएं देख सकते हैं। तो बहुत सारे अवसर हैं। मैंने इसके लिए एक अपना मॉड्यूल बनाया हुआ है। मैं विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जाता हूँ, पूरे दिन का एक सेमिनार करता हूँ। छात्रों से मैं निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पर कमेंट में हमने वेबसाइट का URL दिया हुआ है, ID दी हुई है, आप वहां पर आकर और हमसे विस्तृत बात करें। हम आपके पास आकर आपको बताएंगे कि सरकारी क्षेत्र में प्राथमिक अध्यापक से लेकर और विश्वविद्यालय के अध्यापक तक, क्लर्क से लेकर और भारतीय प्रशासनिक सेवा तक, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, यदि हम कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को छोड़ दें, जहां पर आप संस्कृत अध्ययन के साथ नौकरी नहीं पा सकते हैं। अब सवाल यह है कि सरकारी नौकरी कितने लोगों को मिल पाती है। एक आंकड़ा मैं आपको देता हूं कि DSSB ने दिल्ली में शिक्षक बनने के लिए 2014 में जो परीक्षा ली, उसमें 50% से भी अधिक वैकेंसी खाली रही, क्योंकि योग्य छात्र नहीं पाए गए संस्कृत के। तो मेरा जो कहना है संस्कृत के छात्रों से, वो सबसे पहले ये है कि आप संस्कृत विषय को उसी प्रकार पढ़ें जिस प्रकार अन्य विषय के लोग अपने विषय को पढ़ते हैं। मेरा मतलब है कि अगर फिजिक्स पढ़ने वाला विद्यार्थी केमिस्ट्री पढ़ता है, मैथ्स पढ़ता है, अंग्रेजी पढ़ता है, तो संस्कृत पढ़ने वाला विद्यार्थी यदि उसके साथ, अपने संस्कृत विषय के साथ, वो सामान्य गणित, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर आदि की जानकारी रखता है, तो आगे चलकर उसके पास न केवल सरकारी क्षेत्र में बल्कि प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में हजारों हजार अवसर उपलब्ध हैं। मुझे नहीं मालूम अभी कितना समय बचा है, लेकिन मैं जरूर संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि जितने भी उद्योग व्यापार से संबंधित क्षेत्र हैं, जितना भी सेवा क्षेत्र है, ट्रांसपोर्ट का है, फूडिंग का है, इवेंट मैनेजमेंट है, बीमा है, रेस्टोरेंट है, चाहे मल्टी सर्विस शॉप है, चाहे ऑनलाइन सप्लाई चेन है, चाहे टीचिंग लर्निंग टूल्स का निर्माण है, कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर उसके प्रोडक्ट को की सेलिंग है, टेलीविजन, रेडियो, पब्लिकेशन, एड फिल्म, जर्नलिज्म, एनिमेशन, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, सोशल वर्क में डिग्री लेकर NGO के साथ काम करना है, ट्रेवल एंड टूरिज्म में डिग्री लेकर उसमें आगे जा सकते हैं। 12th के बाद बिना मैथ्स के आप BBA करके और MBA करके आप उस क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। होटल मैनेजमेंट में डिग्री ले सकते हैं। योगा और फिटनेस का क्षेत्र है, DLED, B.Ed करके आप टीचिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, जो कि प्राइवेट और निजी दोनों क्षेत्रों में खुला हुआ है। तो अनेक अनेक अवसर हैं। मैं तो ये कहूंगा कि केवल संस्कृत ही ऐसा विषय है जो रोजगार की गारंटी देने वाला विषय है, और विद्यार्थी यदि उसकी तैयारी शुरू से करे तो मुझे नहीं लगता कि संस्कृत का एक भी विद्यार्थी रोजगार से रहित रह सकता है। डॉक्टर शिल्पी सर, एक अंतिम प्रश्न आपसे कि आप हमारे छात्रों को क्या कहना चाहेंगे? कोई ऐसी 3 स्किल्स, ऐसी योग्यता जो उनके पास अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, दैट मस्ट बी प्रेजेंट विद देम, ताकि वो अपने जिस भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं हो सके। देखिए, सबसे पहले जब वो अध्ययन शुरू करते हैं तो उन्हें 10वीं कक्षा तक गणित, अंग्रेजी, विज्ञान जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आगे चलकर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जिनमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास 10वीं के स्तर पर ये होना अनिवार्य हो जाता है। तो 10वीं तक गणित, अंग्रेजी, विज्ञान जरूर पढ़ें अपने संस्कृत विषय के साथ साथ। उसके बाद जैसे ही वो आगे की कक्षाओं में जाए तो अंग्रेजी भी साथ में पढ़े, क्योंकि अंग्रेजी आपके व्यवसाय को, आपके व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे आपको सरकार की ओर से अनुमति लेनी पड़ती है, बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ते हैं, बहुत सारे टैक्सेस की चीजें आती हैं, तो वो अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जरूर पढ़े। उसके बाद जब वो स्नातक स्तर पर आते हैं तो अपने विद्यालयों से, महाविद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से जरूर निवेदन करें कि वो काउंसलिंग के सेशन, अपने कैरियर काउंसलिंग के सेशन आयोजित कराएं, ताकि कुछ लेवल पार्टी वन करो सुबह जीवन ना सेमिनार और विद्यार्थियों को इस बात की जागरूकता जरूर हो जाए
कि उनका जो रुचि का क्षेत्र है उसमें जाने के लिए उनके किस प्रशिक्षण की आवश्यकता है और कैसे वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि केवल सरकारी नौकरी करना रोजगार नहीं है। संसार में जितने प्रकार के रोजगार हो सकते हैं संस्कृत के विद्यार्थी उन सब में जा सकता है, बशर्ते उसको प्रशिक्षण थोड़ा सा मिल जाए। और ये काम संस्थानों को करना है, विद्यालयों को करना है, महाविद्यालयों को करना है, विश्वविद्यालयों को करना है और संस्कृत क्षेत्र की जो संस्थाएं उनको करना है। डॉक्टर शिल्पी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे छात्रों की मार्गदर्शन के लिए। धन्यवाद। So we are running out of time. Quickly, we have lots of questions which we have got from our viewers, and we will try, even if not possible on this platform, but we will answer all of your questions. I'll be forwarding your questions to the person whom you have named, and then from them you can get the answers also. Here we'll be taking only few questions which are relevant to the forum today. So the first question here which I am sharing is परंपरागत संस्कृत को वर्तमान से कैसे जोड़ सकते हैं? No particular person is written here. किसके लिए ये question पूछा गया है? So I would request any of the speakers who want to answer this question. मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा मैडम जी। देखिए, मैंने बहुत सारे गुरुकुल में विजिट किया, वहां जाकर उनके जो संचालक हैं उनसे बात की और उनसे ये निवेदन किया कि जो आप संस्कृत का परंपरागत पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, यदि आप अपने यहाँ पर अतिरिक्त, भले ही वो उनका जो परीक्षा बोर्ड है इसकी इजाजत न देता हो, लेकिन आप अपने प्रयासों से, अपने संसाधनों से अतिरिक्त शिक्षक सामान्य गणित, अंग्रेजी और विज्ञान और उसके साथ साथ आप कंप्यूटर का भी अगर ज्ञान बच्चों को दे देते हैं, तो एक तरफ विद्यार्थी संस्कृत में निष्णात होकर निकलेगा, दूसरी तरफ उसको जो आधुनिक चीजें चाहिए जिसके बिना जीवन चलना थोड़ा सा कठिन है, और संस्कृत वाले के ऊपर ये आरोप भी लगता है कि वह एकांगी होता है, वो संस्कृत अगर जानता है तो बाकी चीजें नहीं जानता है, तो इससे बचा जा सकेगा और बच्चे को संस्कृत के ज्ञान के साथ साथ आधुनिक चीजों का भी ज्ञान साथ साथ में होता जाएगा, जो आगे चलकर रोजगार की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगा। Thank you so much, sir. One more question we have got from Professor Ambaji. Can you specify worked on application of Sanskrit in computing language, and is it superior in nature than the computing languages? Well, see, Sanskrit, as I said earlier, the Indian theories of Shabdabodha, Panini's grammar, these are more useful for computational purpose, for natural language processing. So these are being used within India, not only for Sanskrit computation of Sanskrit language, but also for other Indian languages and for English and other foreign languages as well. So the relation between Sanskrit and computers is actually give and take kind of thing. Sanskrit itself, the Sanskrit Shastras are giving a lot to the computers, computational computational linguists. The whole theory is available in Sanskrit Shastras to do this technology. So just as for any technology, you need a basic sciences. Here, basic sciences are available, and you can have the technology which are based on these sciences, which will be better. So you will get a better technology if your scientific basis is good. Here, I would also like to answer the previous question. I should say, paramparagat jo paddhati hai, that should continue, but at the same time, we know that prayojanam vina na mandopi pravartate. So we should know what is the prayojana of these. Well, I am not saying that you stop learning in the paramparagat traditional way. You should continue that. Just as the basic sciences, research in basic sciences is continued in modern world, in the Western world, we should also see what are the applications of these in the current scenario and try to build the applications, try to use these shastras for various application scenario, and then there will be better even रोजगार की समस्या जो है
वो खत्म हो जाएगी इससे। Thank you one and all for this innovative and very enlightening session. Thank you very much.